Good morning, children. Children, we have already studied the three forms of public sector enterprises. Let's now study the other type of corporation, enterprise, business organization, which is global enterprise. And this is very important because it is considered an important pillar of our economy. So, what is global enterprise? The word global, that means around the globe, around the world, something which is not limited to any particular country, but it is beyond the border of a country. It is in like all the countries of the world. That is what we call as global. So, global enterprises, what are they? MNCs is the most common term for these type of enterprises, which you must have definitely heard. MNCs, multinational corporations. Now, क्या होती हैं multinational corporations? Multi means many, corporations, organizations. Now, what is the difference between company and corporation? इसको हम corporation क्यों बोल रहे हैं? Company means business at a small level, small, not very small, but as compared to these MNCs, they have huge they are of giant size and they have huge turnover, so we call these type of companies as corporations. So other names which we can call these companies by, they are international companies, they may be transnational companies, transnational organizations, transnational enterprises, or multinational corporations or multinational enterprises. So these are the names by which we call these kind of business organizations. Now, what are they? As the name suggests, multinational, any organization which operates in more than one country. एक country से ज़्यादा किसी company का अगर operation, चाहे वो production हो या उसकी marketing, अलग अलग countries में है, तो उसको हम कहेंगे multinational corporation और transnational corporation और global enterprise. Okay, now if there is a business house which is selling its products to other countries, export अगर हो रहा है, तो उस business firm को हम क्या global enterprise कहेंगे? The answer is no. Export is a different thing, but अगर एक setup किसी बिज़नेस का है, वो अपनी सब्सिडियरीज मीन्स कि उसकी जो ब्रांचेस वो दूसरे कंट्रीज़ में स्टार्ट करता है, इस्टेब्लिश करता है. द पेरेंट कंपनी, its office will remain in one country, but it spreads its branches in several other countries. Its operations, इसका production, इसका marketing, ये सारे इसकी branching जो दूसरे countries में होगी, then a company will be called a multinational company, multinational corporation. Okay, now what is the rationale behind establishing multinational companies or behind spreading the operations of a company in other countries beyond the boundary of the home country? अपने country से बाहर जाके business फैलाने का की वजह क्या है, उसका rationale क्या है? उसका simple, I'll try to explain it in a simple giving a very simple example to you. Suppose you start any business. You start some business in Aligarh, in any particular locality, say in Rasalganj area or in Jamalpur area. You start some production. So gradually what happens, people start liking your products and they start demanding your products. आपका कोई चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो पहले तो अपने लोकेलिटी के लोगों को केटर कर रहा है, उनके नीड्स को. देन ग्रेजुअली आपके प्रोडक्ट्स, because you are maintaining good quality, so people of nearby localities also start coming to you for your products. So what happens कि gradually आपका business spread होता है, your demand increases, your supply also has to increase, production आपका उसको high करना पड़ेगा. अब demand बढ़ रही है तो production भी आपको उसका बढ़ाना पड़ेगा. Then what happens, आपका अब क्या था कि अभी वो आपकी जो टेरिटरी थी, जो पर्टिकुलर एरिया में लिमिटेड था आपका बिजनेस, इट स्प्रेड्स आउट टू अदर पार्ट्स ऑफ योर सिटी ऑल्सो.
अदर पार्ट्स में जाता है. नाउ व्हाट हैपन्स, पीपल हु लिव इन दीज एरियाज व्हेन दे गो आउट ऑफ अलीगढ़, दूसरी जगह पर जाते हैं, तो दे हैव अ लाइकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ योर्स, एंड इवन आउटसाइड अलीगढ़ दे विल स्टार्ट डिमांडिंग फॉर योर प्रोडक्ट्स. अ जनरल एग्जाम्पल लाइक अलीगढ़ की मठरी बहुत फेमस है, लोग पसंद करते हैं. तो क्या होता है कि जो अलीगढ़ से बाहर भी लोग गए हैं, दे डिमांड दिस थिंग, दे विल ट्राई टू गेट इट थ्रू सम सोर्सेज, उसको वहाँ पर भी मंगा कर यूज़ करने के लिए दे डिमांड इट. सो अब क्या होता है कि एक तो उनकी डिमांड फुलफ़िल करने का ये तरीका है कि जो भी उनके नोन लोग हैं वो उनके थ्रू वहाँ पर मंगा लें. दूसरा क्या है, आजकल जो एक नया ट्रेंड हो गया है हमारा, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो हम जो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम लाइक ऑनलाइन भेज सकते हो, जिसको हम बाय पोस्ट भेज सकते हो, बाय कोरियर भेज सकते हो, वो इस तरह चीज़ें फैलती हैं. द थर्ड एंड द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ सर्विंग पीपल्स नीड इज़ कि अगर सपोज़ कोई अलीगढ़ की कोई एक प्रोडक्शन हाउस है जो मठरी प्रोड्यूस कर रहा है, वो ये सोचता है कि आसपास के जो जगह हैं, बीट आगरा और बीट दिल्ली, कुछ वहाँ की लोकेलिटीज़ में अलीगढ़ के काफ़ी लोग हैं जिनकी डिमांड मटरी की वहाँ से बहुत आती है, वहाँ से यहाँ पर काफ़ी यहाँ से मंगवा के वो करते हैं. तो वो सोचते हैं कि इससे बेटर ये है कि यहाँ से भेजी जाए, जिसके पोस्टल चार्जेस एंड ऑल दैट इज़ इन्वॉल्व. तो इट्स बेटर कि हम वहाँ पर ही अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी इस्टेब्लिश कर दें, लाइक पेरेंट कंपनी उनकी यहीं पर रहेगी, उसकी एक ब्रांच वो वहाँ पर कर दें, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पर जो उनका कंज्यूमर बेस है वो सफिशेंट है कि उनकी वहाँ पर सेल उतनी रहेगी टू मीट आउट the expenses of establishing a branch over there, and they can generate substantial profits from that place. So what happened, they establish a branch over there. अब वो ब्रांच ऐसी भी हो सकती है, उसका क्या तरीके हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है कि प्रोडक्शन यहीं पर हो मास लेवल पर, और वो उसको सप्लाई वहाँ करते हैं जहाँ पर एक सिंपल आउटलेट हो, वो वहाँ पर सेल होना शुरू हो जाए. तो अब लोगों का क्या होगा कि जो लोग पहले कभी कभार उनको चांस मिलता था एंड दे वुड ट्राई टू गेट इट फ्रॉम अलीगढ़, सो अब उनको वहीं पर एक आउटलेट मिला है, वहीं पर उनको ईजिली जब चाहे उनको वो चीज़ अवेलेबल है, तो सेल ऑफ कोर्स विल गो अप, सेल ऑफ दैट प्रोडक्ट विल राइज. So that is one way. Another way is, now people feel somebody who is producing this product मटरी, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, जिसको हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है. अब somebody who is doing that production of this मटरी, वो सोचते हैं कि हम अगर आगरा या आसपास की और जो जगह हैं, दिल्ली, नोएडा, these kind of places जहाँ पे डिमांड हो रही है उनके प्रोडक्ट की, अगर वहाँ पर ही हम एक प्रोडक्शन यूनिट भी डाल दें, यहाँ से बना के भेजने के बजाय उसको वहीं पर प्रोड्यूस करना शुरू कर दें. उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं, वो सोचते हैं कि रॉ मटेरियल भी वहाँ पर इजीली अवेलेबल है. ऐसा नहीं है कि वो एक कुछ ऐसा है जो अलीगढ़ में ही अवेलेबल है तो उसका प्रोडक्शन यही होना चाहिए. द रॉ मटेरियल्स एंड अदर थिंग्स, द मैन फोर्स and everything is available at that place also, and that is I mean reasonable, that is available at reasonable price. So why not to establish a production unit there. तो वो अपना एक प्रोडक्शन यूनिट वहाँ पर शुरू कर देते हैं, बट अपना वो ब्रांड मेंटेन करते हैं. ब्रांड जो उनकी ब्रांड का नाम है, उसी ब्रांड नेम से वो वहाँ पर सेल होगा, एंड दे हैव टू मेंटेन द क्वालिटी ऑल्सो. उसका भी क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड उनको मेंटेन करना पड़ेगा. So that way they are spreading their branches in nearby areas. They are crossing the boundary of the city and they are spreading out their business to the nearby places. And gradually जैसे जैसे उसका अब उसमें अभी तक क्या था कि डिमांड वो लोग कर रहे थे कि जिनको ऑलरेडी टेस्ट डेवलप था, जो यहाँ से मंगाते थे. जब उनको वहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल होती है, अदर पीपल who get a chance to use that product, उनको भी उसका डेवलप हो जाता है, एक टेस्ट डेवलप हो जाता है, तो उनकी भी डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है. तो क्या होता है कि उससे आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, सेल बढ़ गई, एंड आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ भी बढ़ गई. तो इस तरह होता है कि बिज़नेस का एक्सपेंशन. सेम जो इसका बेसिस है MNCs का, वो भी यही है कि अ कंपनी विच हैज़ लाइक good resources
and it has capital resources, sufficient amount of capital resources, and it is using latest technology for its production process. So वो क्या करते हैं कि वो अपना फिर अदर नेशंस में भी बढ़ाते हैं. ये रीज़न होता है कि अपना इनको एक ब्रांड डेवलप करनी है इंटरनेशनल लेवल पर. अभी तक अपनी ही कंपनी में वो जाने जाते थे, अब उसको स्प्रेड आउट करके दे आर टेकिंग इट बियॉन्ड द बाउंड्री. सपोज कुछ हमारे now you just have to think about the companies which are multinational companies which have their headquarters in some other part of the world and they are operating in our country also. ऐसे कुछ नाम जो आपने सुने होंगे multinational companies के, you have to think about that. Just try to bring those names in your mind so that you will be able to understand this concept in a better way. Now other companies which were working at domestic level in our country, अपने ही country में हमारे यहाँ operate कर रही थी, now they are spreading their wings, now they are reaching out to other parts of the world and they are spreading their production, their marketing in different other parts of the world. हमारे अपने home जो companies हैं वो भी बाहर जाके अपने ऑफिसेस, अपने operations फैला रही हैं, दूसरे countries में भी अपना अपना उनका बढ़ रहा है, ब्रांचिंग हो रही है, सब्सिडियरीज वहाँ इस्टेब्लिश कर रही हैं. सो दे आर ऑल्सो मल्टीनेशनल कंपनीज. So for being labeled as a multinational company, a company should have its operation in more than one country. If it is in 2 countries also, तब भी ये इसको हम multinational company कहेंगे. So now just try to think of a few companies जिनको आप जानते हैं, which have become a part of your life. आप daily उनके products use करते हैं and they are operating at international level. Like Coca-Cola, very common, everybody uses on daily basis. Coca-Cola क्या है? It's a beverage, non-alcoholic beverage, very common in use, every person uses that. अब ये क्या है? This is not हमारा की origin की company नहीं है. It is an international company which has its origin in some other part of the world. But इसका क्या है कि it has its branches in almost every country of the world. And in India also, and it has its subsidiaries. Like India में वो चीज़ आती है तो उसको like कुछ companies हैं, suppose there is Microsoft Corporation, which is an American company. It has its headquarter in America, but it came into India in 1990 and it established its headquarter in हैदराबाद में अपना हेडक्वार्टर कर लिया. तो यहाँ पर उसकी एक सब्सिडियरी हो गई जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन अमेरिकन कंपनी थी, उसकी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इंडिया करके एक सब्सिडियरी यहाँ पर हो गई. तो इस तरह इन कंपनीज़ का क्या होता है कि दे इस्टेब्लिश देयर ब्रांचेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड वहीं पर उनका प्रोडक्शन भी जो है वो लोकल लेवल पर होस्ट कंट्री में प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाता है. बट दे हैव टू मेक श्योर दैट दे मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ द पेरेंट कंपनी. अपनी क्वालिटी मेंटेन करने को वो पॉलिसी जो है वो पेरेंट कंपनी की पॉलिसी फिक्स बिल्कुल पॉलिसीज़ होती हैं, उन्हीं पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए जो सब्सिडियरी ब्रांचेस हैं उनको भी अपना प्रोडक्शन, अपने ऑपरेशंस उन्हीं स्टैंडर्ड पे, उन्हीं पॉलिसीज़, उन्हीं नॉर्म्स को फॉलो करते हुए करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि वो अपना कुछ अलग रूल बना देंगे. सपोज़ मैकडोनल्ड्स. Now McDonald's, it has its subsidiary in every part of the world, in every country and in almost every city of the world. तो इंडिया में भी आप देखते हैं every small and big city now has a McDonald's branch. अब मैकडोनल्ड्स की जो प्रोडक्ट हैं वो आप कहीं भी उसको यूज़ करते हैं, कहीं भी इससे भी आप लेते हैं तो you'll find they are all same, they meet दैट इज स्टैंडर्ड. ऐसा नहीं है कि हर जगह का आपको टेस्ट अलग लगेगा. आप मैकडोनल्ड्स का बर्गर अलीगढ़ में खाएंगे या दिल्ली में खाएंगे तो जो उनके डिफरेंट टाइप के बर्गर्स हैं उसका हर जगह का टेस्ट आपको सेम लगेगा बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इन मेंटेनिंग देयर क्वालिटी.
उसके बेसिस पर ही उनका एक नाम उन्होंने अपना मार्केट में बनाया है। अगर वहाँ पर वो कोई वेरिएशन हो जाता है, अगर आप किसी भी अलग अलग जगह पर लोगों ने, जो लोकल लोग हैं, उन्होंने उसकी फ्रेंचाइजी ले रखी है, उसमें वो अपने हिसाब से कोई चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ अपना प्रोडक्ट उसमें वहाँ पर सेल करना शुरू कर दें। नो, दैट इज़ आई मीन very strictly against the norms of the company. So this is how these multinationals operate. So this was just to give you some idea about the rationale and the operations of multinational companies. Now, a few Indian companies which have established their branches all around the world and in different countries of the world. To name a few, like Tata Motors. टाटा मोटर्स इंडियन कंपनी है, रतन टाटा का एक इस्टेब्लिशमेंट है. इट हैज़ established its like branches in other parts also. अब अदर पार्ट में ब्रांचेस भी हो सकती हैं, और एक और तरीक़ा होता है बाहर कंट्री में अपने सब्सिडियरीज़ करने का. एक होता है लाइक वहाँ की जो कंपनीज़ है उनसे मर्जर कर लें. वहाँ की जो ऑलरेडी एक कंपनी है, अच्छी लीडिंग कंपनी है, उस कंपनी के साथ एक मर्जर मीन्स एक कॉम्बिनेशन हो जाता है, दोनों का कंबाइन कर लेते हैं. उससे क्या होता है कि उस कंपनी के आप रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ क्वाइट एन एक्सपेंसिव प्रोसेस टू go in other countries, fulfill all the formalities. It includes elaborate legal formalities. वो सब करने के बाद वहाँ पर अपने रिसोर्सेज भी डेवलप करना. लाइक कैपिटल रिसोर्सेज इज़ फाइन, बट इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्सेज एंड ऑल दैट. तो उस केस में क्या करते हैं, कुछ कंपनीज़ को ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वहाँ की एक लीडिंग कंपनी, दे जॉइन हैंड्स, दे अंडरगो मर्जर. एक मर्जर का रहता है प्रोसेस, मर्ज हो जाती हैं कंपनीज़, और वो दोनों मिलकर एक कंपनी बन जाती हैं, जिससे वो उनके रिसोर्सेज, ये कंपनी अपनी कैपिटल उसमें शेयर कर देगी, दूसरे कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्सेज हैं, मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो उनका एक कोलैबोरेशन हो जाता है. और वहाँ पर इस तरह भी ये कंपनीज दूसरे जगह पर जाकर अपना प्रोडक्शन या अपने ऑपरेशंस को शुरू कर सकती हैं. इसको एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे ऐसे ही देखिए, जैसे अभी मैं आपको लोकल बिज़नेस के बारे में देकर समझा रही थी कि यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग समथिंग बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ योर सिटी. तो उसमें क्या होता है कि इफ़ यू गो आउट टू सम अदर सिटी वेयर यू वांट टू एस्टैब्लिश अ ब्रांच ऑफ योर प्रोडक्शन यूनिट, सो वहाँ पर आप देखते हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसा बिज़नेस ऐसा जो चल रहा था जिसके साथ आप एक कोलैबोरेशन करते हैं. तो उनका एक सेटअप है ऑलरेडी, उस सेटअप को आप या तो एक्वायर कर लें, उसको एक्विजिशन कहते हैं, कि वो आपको टोटली आपको सेल कर दे. अब उनका नाम कहीं नहीं रहेगा. यू पे हिम फॉर देयर दिस थिंग, एंड दे हैंड ओवर ऑल देयर रिसोर्सेज टू यू. सो नाउ that unit will be working under your name. Their name will entirely be removed. That is what we call as acquisition. Another thing is merger. That unit remains there as it is. You just undergo a merger. दोनों मर्ज हो जाती हैं, and now together they operate. उनके जो भी resources हैं, they pool up. They share their resources and they together start their operations. तो उसमें क्या होता है कि sometimes some of the companies they are not running very well, या उन पे बहुत सारा debt हो जाता है. Then under those situations the companies prefer undergoing merger or acquisition. Fine. So let's now see the features of global enterprises. Okay, first the definition. Global enterprises are the companies that operate around the world through a network of their branches in several countries. Global enterprises extend their industrial and marketing operations. So this is to define global enterprises. Let's now see the features. All right. The characteristics of global enterprises: giant size, very high, like very huge assets and huge turnover. Now what happens जब अलग अलग जगह में अपने होम कंट्री, अपने होम प्लेस से हटकर दूसरी जगह में स्प्रेड आप कब कर पाएंगे, जब आपके पास उतने रिसोर्सेज होंगे, उतनी कैपिटल होगी.
सो अब आपका लाइक यू आर इन्वेस्टिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल to develop subsidiaries of your company, so that way I mean your assets have to be huge in size, and definitely your turnover will also be much greater. Next is international operations. It is, I have explained to you, network of branches the company establishes in different parts of the world, and it has its parent company. अपने होम कंट्री में पेरेंट कंपनी रहती है, उसका हेडक्वार्टर रहता है, एंड इट्स पावर गेट्स सेंट्रलाइज्ड ओवर देयर, एंड इट हैज़ टू ओवरसी द वर्किंग ऑफ ऑल इट्स सब्सिडियरीज़. जो सब्सिडियरीज़ की जो ब्रांचेस डिफरेंट पार्ट्स में होती हैं, वो वहाँ पर उनकी ऑपरेशंस को हेडक्वार्टर से मैनेज किया जाता है. सेंट्रलाइज कंट्रोल. A multinational corporation has its headquarters in the home country. It exercises control over all its branches and subsidiaries. It has to ensure that all the subsidiaries, all its branches, they are fulfilling the company's policies, they are fulfilling all the norms of the company. उसी standard पे बिल्कुल meet out कर रहे हैं. Like they have very clear rules laid down for each and every operation, for each and every thing. तो उसके दे हैव टू मेक श्योर कि वो उसी स्टैंडर्ड पे उन्हीं पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए सारे सब्सिडियरीज़ का फंक्शनिंग हो रही है. दिस हैज़ टू बी एंश्योर्ड बाय द हेडक्वार्टर ऑफ द पेरेंट कंपनी. Oligopolistic power. What is oligopolistic power? This term you have read before. That means holding control. किसी चीज़ के ऊपर ओवरऑल एक कंट्रोल लेना. लाइक बहुत से लोग इन्वॉल्व हों, बट कुछ लोग उसमें पूरा कंट्रोल अपना रखें. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज oligarchy. And here these MNCs, they have oligopolistic power. Why? Because their operations are so sophisticated. तो वो क्या करते हैं कि वो पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं. लाइक इफ़ यू जस्ट थिंक ऑफ द फ्यू ब्रांड्स जिसमें आपको पता है कि उस सेम प्रोडक्ट के लिए यू हैव so many other local brands also, but people feel privileged using these products of the MNCs. उनकी प्रोडक्ट्स को यूज़ करने में उनको ज़्यादा एक सेटिस्फैक्शन होता है, ज़्यादा उस प्रिविलेज फील करते हैं उसके यूज़ करने में. तो उससे क्या होता है कि इन कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती चली जाती है. वो जो लोकल लेवल पे जो और ब्रांड्स ऑपरेट कर रही होती हैं, वो उनको बिल्कुल सप्रेस कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हम जैसे मैकडोनल्ड की बात कर रहे थे. नाउ देर आर सेवरल अदर आउटलेट्स सेलिंग बर्गर्स. लोकल लेवल पे बहुत सारे बर्गर्स की शॉप्स हैं, बट यू फील सेटिस्फाइड buying a burger from McDonald's. Why it's so? Because you know the quality will be maintained, and you will find hygienic condition. You have your right. If you don't find anything up to the mark, then you have a right to like lodge a complaint or something that will be definitely heard, that will definitely be acted upon. क्योंकि उनको अपना कंपनी का एक नाम ऊपर रखने के लिए उस स्टैंडर्ड को बिल्कुल 100% इंश्योर कर रहा है. On the other hand, what happens, the local brands, they cannot conform to those rules in general practice. उनके लिए मुश्किल होता है, उनका प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता है, उतनी ज़्यादा सेल नहीं होती है, उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है. So they find it really difficult to maintain a high standard, a sophistication in their operation. और वो चीज़ हमें इन कंपनीज़ के थ्रू मिलती है. तो इस तरह क्या होता है कि जब सारा मार्केट शेयर इनके पास आ जाता है, दे एन्जॉय एन oligopolistic power in the market. Sophisticated technology, this I have already used. Because they have to meet the international standards, so they have to they employ capital intensive technology. Capital intensive technology क्या है कि ऐसी सारे उनको यूज़ करना है कि जिससे उनका कैपिटल जो उन्होंने लगाया है उसका रिटर्न उनको मिले. Like I have told you, they have a giant size, huge production, huge turnover. So वो कैसे इंश्योर करते हैं? Because they have to यूज़ sophisticated technology, and उनको ये इंश्योर करना होता है कि इतना सारा आप
देखते होंगे जो इस तरह की कंपनीज लाइक यू हैव डोमिनोज, यू हैव पिज़्ज़ा हट, यू हैव मैकडोनल्ड्स, उनका ओवरऑल सेटअप जो होता है ईच एंड एवरी थिंग इज़ वेरी लाइक प्रिसाइजली वेरी आई मीन वेरी मच ऑफ हाई स्टैंडर्ड. आप कंपेयर करेंगे लोकल उससे तो दे हैव टू मीट आई मीन एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. हर चीज़ उनकी एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में होती है. उनके जो सर्विंग का तरीका होता है, उनका प्रोडक्ट्स तो होते ही हैं बेटर इन क्वालिटी, बट अदरवाइज ऑल्सो द ओवरऑल सेटअप इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. तो इस तरह उनको क्यों ये इतना उसमें जब इतना ज़्यादा पैसा उन्होंने लगाया है तो उनको ये इंश्योर करना होता है कि उनका टर्नओवर उसी प्रोपोर्शन में उनका टर्नओवर भी रहे, उसी प्रोपोर्शन में उनका प्रॉफिट भी हो, रेवेन्यूज़ भी वो जनरेट कर पाए. उनका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसके प्रोपोर्शन में ही उनको वहाँ से रेवेन्यूज़ जनरेट कर पाए. नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल मैनेजमेंट. If you have any of your family member working in MNCs, you must have heard that their working conditions are very much different. They provide very good working conditions to their employees. बहुत अच्छे incentives देते हैं, high salaries देते हैं, and other than salaries and incentives, they provide very good working condition which is matching the international standard. बट उसका क्या होता है कि उनका काम कराने का भी एक डिफरेंट तरीका होता है. पीपल वर्किंग ओवर देयर, दे आर वेरी गुड प्रोफेशनल्स. इवन वर्किंग इन दोज ऑर्गेनाइजेशन अ पर्सन बिकम्स अ गुड प्रोफेशनल बिकॉज प्रोफेशनल इज़ अ मस्ट इन देयर वर्किंग एनवायरनमेंट. जो लोकल लेवल पर लोग होता है कि कैजुअल अप्रोच होती है. पीपल दे नो द वर्क बट दे डू नॉट हैव दैट प्रोफेशनल एटीट्यूड. बट पीपल एम्प्लॉयज़ ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, दीज कॉरपोरेशंस, दे आर very good professionals, and their overall management is highly professional. Next is international market. On account of its vast resources and superior marketing skills, a multinational corporation has vast access to international markets. क्योंकि इनका इतना नाम हो जाता है, like when even we didn't have McDonald's, Domino's, these kind of outlets here in Aligarh, everybody was aware, everybody knew that these are the leading brands in these kind of food products. सबको उसका टेस्ट पता था. कहीं भी कोई जाएगा तो they would love to eat the products of these kind of business houses. सब एक everybody loves the product. और उससे उनका क्या होता है कि मार्केट में सब जगह उनका ऑलरेडी नाम इस्टेब्लिश हो जाता है, उनकी ब्रांड इस्टेब्लिश हो जाती है, उसकी क्वालिटी इस्टेब्लिश हो जाती है, एंड दे कैन वेरी ईजिली कैप्चर इंटरनेशनल मार्केट्स. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट इनोवेशन. इनोवेशन इज़ समथिंग न्यू, कुछ नया उसमें इनोवेट करना, नया उसको बनाना. नाउ हाउ is that possible for multinational corporations? Because working in different parts of the world, they gather expertise, they gather experiences, they gather knowledge, and combining all that, they are able to innovate their products. आप एक ही जगह पर करेंगे उसी पैटर्न पे, कुछ उसमें नए आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, कुछ आपको नया एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, आप सेम पैटर्न पे ईयर आफ्टर द ईयर आप सेम पैटर्न पे काम किए चले जा रहे हैं. बट इफ़ यू एक्सपेंड योर हॉराइजन, आप अपना दायरा बढ़ाते हैं, आप नए लोगों को उसमें शामिल करते हैं, बाहर के लोगों को, नए लोगों को शामिल करते हैं, नए आइडियाज़ आते हैं. इसी तरह ये MNCs जब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, when they reach out to different parts of the world, when they spread their wings to at global level, so what happens, they get to collect the ideas, collect the experiences of different people all around the world, and उस सब को यूज़ करके they innovate their products wonderfully. Next is marketing strategies. Multinationals, they use aggressive marketing strategies. अब आपने देखा होगा कि जितने भी इस तरह की कंपनीज हैं, पैप्सिको, कोका कोला, देन एप्पल जो मोबाइल फ़ोन्स की, आईफोन्स की, आईपैड, इन सब की कंपनी है, एंड सो मेनी अदर कंपनीज आते हैं, नेस्ले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये सारी
मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सोनी, all these they have very extensive marketing strategies. They follow aggressive marketing they do. आप देखते हैं सारे हर तरह का like visuals, print media, using all sorts of media they try to do their marketing. क्यों मार्केटिंग इनके लिए ज़रूरी होती है? सो दैट देयर नेम इज़ हर्ड इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द प्लेस वे दे हैव स्टैब्लिश देयर ब्रांचेस. जहाँ पर भी है तो वहाँ इतनी मार्केटिंग करेंगे कि लोगों को सिर्फ उन्हीं का नाम याद रहे. लाइक इफ़ यू थिंक ऑफ एनी कोल्ड ड्रिंक, आपके दिमाग में सीधे कोका कोला और पेप्सी ही आए. अगर कुछ लोकल कोई किसी तरह का प्रोडक्ट होता है तो वो कम्प्लीटली लाइक एलिमिनेट हो जाता है. ये इतना स्ट्रॉन्ग इनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज रहती हैं. नेक्स्ट फीचर इज़ फॉरेन कोलैबोरेशन. ग्लोबल और एंटरप्राइजेज दे यूजुअली एंटर इनटू एग्रीमेंट्स विद लोकल फर्म्स इन द होस्ट कंट्रीज़. मैंने जैसा भी आपको बताया था, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस ये सब जो होते हैं. एंड इफ़ नो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, इफ दीज कंपनीज independently establish their branches, their subsidiaries in other countries, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ की जो लोकल कंपनीज़ हैं उससे रेलेवेंट कुछ आप यहाँ पर जैसे IBM और ये कंपनीज़ आए, इसकी IT वगैरह की जो कंपनीज़ आए. सो व्हाट दे विल डू, IBM एंड दीज कंपनीज़ व्हेन दे गॉट एंट्री इनटू इंडिया, तो वो क्या करेंगे कि IT रिलेटेड जितनी ऑल इंडिया में जितनी कंपनीज़ ऑपरेट कर रही है, दे will try to collaborate with those companies so that they can have like direct links, जिससे उनका सेल का और उनका लाइक डिमांड, उनकी सप्लाई एंड डिमांड चेन जो है वो एक स्मूथली रन करे. इसके लिए वो लोकल कंपनी जो रेलेवेंट, उनके फील्ड से रेलेवेंट जो कंपनीज होती हैं उससे एक कोलैबोरेशन इस्टेब्लिश करती हैं. सो दीज वर द फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज. Let's now see the reasons for being an MNC. MNC मतलब क्यों प्रेफर करेंगे to establish branches of their company in different parts of the world. What are the reasons? First is access to lower production cost. इसमें क्या होता है कि MNCs usually they come from developed countries to developing countries. Like so many countries which we know, Microsoft, IBM, Nestle, Procter & Gamble, Sony, Coca-Cola, all these companies, they usually have their headquarters in the developed countries. इन सब के अमेरिका में हैं, जर्मनी में हैं, जापान में हैं, यहाँ पर इन सारी जगह पर इनके हेडक्वार्टर्स हैं. एंड यूजुअली ये जो अपनी सब्सिडरी, अपनी जो ब्रांचिंग ये करते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में करते हैं. उससे क्या इनको फ़ायदा होता है? दे गेट टू प्रोड्यूस एट अ लोअर कॉस्ट. यहाँ पर मैन पावर इज़ मच चीपर देन देयर होस्ट कंपनी. अपनी कंट्री में जो इनको जो मैन पावर मिलेगी उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी. लाइक इंडिया में अगर किसी चीज़ का हो रहा है तो हियर बिकॉज ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन मैन पावर इज़ वेरी मच चीप, सो प्रोडक्शन कॉस्ट इनकी लो हो जाती है. सेकेंडली, इंडिया इज़ अ कंट्री विच इज़ लाइक विच हैज़ सो मैनी नेचुरल रिसोर्सेज. तो यहाँ पर अगर प्रोडक्शन होता है तो उनको जो उसके रॉ मटेरियल्स होते हैं वो भी कंपैरेटिवली चीपर रेट्स पर मिल जाते हैं. सो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट गोज़ डाउन व्हेन दे डेवलप देयर ब्रांचेस इन द डेवलपिंग कंट्रीज. सेकेंड रीज़न इज़ टू टारगेट इंटरनेशनल कंज्यूमर मार्केट्स. अब जिन मार्केट्स में उनके कंज्यूमर्स हैं, जैसे अभी मैंने आपको एक लोकल एग्जांपल देके बताया था कि अगर आप जब हमने मटरी की बात कर रहे थे, तो अगर हमें ये पता है कि उस जगह पर अलीगढ़ के काफ़ी लोग हैं, अलीगढ़ के लिंक्स बहुत सारे हैं जहाँ पर ये लोग हमारा ये प्रोडक्ट पसंद करते हैं, तो हम उन्हीं जगह को टारगेट करेंगे कि जहाँ पर हमें पता है कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है. सो दैट वे दे टारगेट इंटरनेशनल कंज्यूमर मार्केट्स. Third reason is avoidance of tariffs. Now what happens when we talk about export and all, it involves a number of things. It involves very elaborate legal procedure. उसमें गवर्नमेंट का रोल होता है, जो इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप होते हैं उस पर बेस्ड होता है. अगर कंट्रीज़ में आपस में रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो वहाँ पर business organization may find hindrance
इन सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स. अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट जो इंटरनेशनल लेवल पे कंपनीज़ के आपस में डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वहाँ पर ये सब चीज़ का भी प्रॉब्लम हो रहा है. आपस में एक दूसरे से एक्सपोर्ट रोक दिया जाता है, सप्लाई बंद हो जाती है चीज़ों की. और अगर बंद नहीं भी होती है तो यूजुअली व्हाट हैपेंस, दीज एक्सपोर्ट टैरिफ्स एंड ऑल, दे आर वेरी ह्यूज. So company have to bear huge tariffs if they want to sell their products to other countries. So they find it comparatively much cheaper establishing their production unit over there, or just supply जो outlet या अपना production houses वहाँ पर branches उसकी establish करना उनको comparatively cheaper पड़ता है. So that is also one reason for being an MNC. एडवांटेजेस ऑफ MNCs, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है बिकॉज MNCs की जैसे हमने बात की कि वो एक ब्रांड अपना एक मार्केट शेयर उनका बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है एंड देयर आई मीन ओवरऑल ऑपरेशंस आर मच एफिशिएंट. दे हैव टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड, सो देयर वर्किंग इज़ वेरी मच एफिशिएंट. सेकेंड, लाइक इसका MNCs का हम एडवांटेजेस उस टर्म्स में देखेंगे कि सपोज इंडिया आर कंट्री, वाई वुड वी इनवाइट एनी MNC टू कम इनटू आर कंट्री. हम किसी दूसरी बाहर की कंपनी को अपने कंट्री में क्यों आने दें. लाइक हम अगर आने दे रहे हैं तो उससे हमारे लोकल कंपनीज पे फ़र्क पड़ रहा है, उनकी जो सेल है वो अफेक्ट हो रही है. बट स्टिल वी आर अलाउइंग सो मेनी फॉरेन कंट्रीज टू कम इनटू आवर्स. व्हाई वी आर डूइंग दैट? बिकॉज फर्स्ट रीज़न इज़ एफिशिएंसी. उनकी जो एक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उनके ओवरऑल ऑपरेशंस आर मच सोफिस्टिकेटेड. सो वी गेट दैट एफिशिएंसी. उनकी एंट्री से हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है. सेकेंड, डेवलपमेंट कैसे होता है कि when they come into our country, when these companies they establish their branches in a developing country, तो उस कंपनी का डेवलपमेंट कैसे होता है? बिकॉज वो उसका जो सेल्स टैक्स एंड ऑल दैट वो उसके बहुत हाई रेट्स पे करते हैं. सो कंपनीज़ के जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जो उसके रेवेन्यूज़ जनरेट होते हैं वो बिगर उसका अमाउंट रहता है. सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट परमिट्स दीज कंपनीज टू कम एंड एस्टैब्लिश देयर ब्रांचेस. Second is employment. Third is employment. Employment, the local people, when these companies are established, when they establish their branches here, their production units here, their marketing chains over here, so local people, they get employment. यहाँ पर इंडिया में कितनी सारी MNCs आई हैं और कितने सारे लोगों को उससे एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है. तो इस तरह क्या होता है कि वो भी एक रीज़न होता है फॉर अ कंट्री टू to welcome these MNCs have their branches established in the country. Next is innovation. We get to learn new technology, we get to learn a new way of working with the entry of these MNCs. So that is also an advantage of MNCs. That is the reason that they are welcomed in any host country, in a developing country. So this was all about MNCs. We have one or two more topics left in this unit, so that we'll study in the forthcoming video tutorials. Thank you very much, children. Have a nice day.